So, welcome back once again. A lot of you have asked me a repeated query regarding what was my book list or my sources when I prepared for UPSC examination. So I thought I'll record a short video and let you know what was my book list when I prepared. This is more or less relevant even today, and maybe there are some better alternatives available in the market, but the constant theme among everything remains one. Core idea remains the same, that is, do not overstretch yourself. आपको बहुत सारी बुक से प्रिपेयर नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड सोर्सेस के साथ प्रिपेयर करना है. रिमेंबर गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये फर्क नहीं पड़ता है कौन सी बुक से प्रिपेयर कर. देखिए, मार्केट में NCERTs हैं, that is common to build the foundation. Then there is some advanced textbooks. Believe me, there are 3-4 options in every subject that are available in the market that everyone finds comparatively more or less same. ठीक है, 3-4 सोर्सेज हैं, किसी भी सोर्स से कुछ भी कभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन आपको ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं आपको 2 या 3 किताबें पढ़नी है. जो भी आपको ये गाइड कर रहा है कि बॉस, आई हैव स्टडीड दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक, डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप. आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं. मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूँ, जो हमारी ऐसे सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऐसे पे डिस्कशन कर रहे हैं. रिमेंबर, आपके उतने ही सोर्सेज होना चाहिए जो एक आपके सारे सोर्सेज मिला के, सारी बुक्स मिला के एक छोटे से बैग में आ जाए. उतनी ही बुक्स रखनी है. आई विल नॉट, मैं स्टैंडर्ड, मेरा एक वो स्ट्रैटेजी सिंपल रहती थी. आई हैव वन सेट ऑफ नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड वन टेक्स्ट बुक. ठीक है, आई हैव वन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड अ सेट ऑफ नोट्स. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी by Indian Polity by M. Lakshmikant was the standard textbook that is being referred by many of the aspirants. ठीक है, स्टैंडर्ड गुड टेक्स्ट बुक. मेरे को पॉलिटी में कुछ नहीं आता था, दैट गेव मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड. फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए मैंने 6 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटीज पढ़ी. अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 6 से 12 तक की इतनी सारी एनसीईआरटीज हर बार रिवाइज करूँ और हर बार. तो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक छोटी सी कॉपी बनाई जिसमें मैंने 20-30-40, आई थिंक 45-50 पेजेस में मेरे 6 से 12 तक के सारे नोट्स आ गए थे. वो मैंने उसमें लिख लिए. उसके बाद उसमें 30-40 पेजेस खाली रह गए. तो मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ पे कुछ 2-3 महीने कोचिंग करी मैंने, वहाँ से कुछ जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो मैंने वहाँ से अपने नोट्स में लिख लिया. उसके बाद जब भी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट मिलता था मैं उस सोर्स में लिखता जाता था. तो द स्टैंडर्ड थिंग दैट आई लेट, इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस शुड नोट हियर इज, do not have too many sources. That is the most important thing. Does not matter आपका क्या source है. Before I go to my book list, please, that is one request for all of you, do not have so many sources. Sources को बहुत limited रखना है. ठीक है, ideally one textbook and one set of notes, these 2 things for each subject is suffice. Believe me, it will be sufficient. Okay, so moving forward, a little bit about myself. I am Alok. I have given this exam of UPSC for 6 attempts. I have given 4 interviews. I got selected in 2019. Okay, I have given 4 interviews. I got selected in my 3rd attempt. So essay performance, because we are having an essay series, I have a dedicated essay series wherein I am that is about mastering the art of essay writing. So those who want or need some improvement in the essay section, that is one of the most neglected, yet the area which has the highest return on investment. You can go through that. Okay, so moving forward, polity, as I already mentioned, polity NCERTs from class 6 to 12th, and the foundation for the foundation, and the advanced book was Polity by M. Lakshmikant. This is the latest, I think this is the version which you can all refer to. अगर इसके बाद का भी कोई version आ गया, you can take that. History, modern history is has a decent weightage. NCERT class 12 Bipin Chandra was my main textbook. I had referred to this book only. But then again you will feel कि यार इसमें हर चीज़ covered नहीं है, right? Then what you can do is, so this one is this book, Modern India History textbook of class 12th, and it is by Sri Bipin Chandra ji. And the other book that you can fall back upon is Spectrum.
लेकिन स्पेक्ट्रम भी अगेन बहुत मोटी वाली भी आती है, एक पतली आती है, रिफर टू द पतला वाला। बट उसको आपको पूरा, दैट अगेन इज अ गाइड। आपको जब उसमें जाएंगे तो आपको इतना प्लोथर ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगा दैट यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, फिर ये दोनों बुक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। तो व्हाट आई डिड इज आई प्रिपेयर शॉर्ट नोट ऑफ, देखिए स्पेक्ट्रम इन इटसेल्फ इज नोट्स ओनली, इट इज अ डिक्शनरी सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, उसमें बस पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, उस बुक से पढ़ा एक बार, उससे मैंने 10-12 पेजेस के नोट्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें एक है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस कैसे हुआ, या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हाउ एजुकेशन एज अ एजुकेशन सिस्टम एज अ होल टेक टुक कोर्स इन द ब्रिटिश एरा। तो उसमें राइट फ्रॉम कितना एक्सपेंडिचर किस एक्ट के तहत हुआ, वोकेशनल ट्रेनिंग पे, या मकलेस मिनट, या इंग्लिश पे, इंग्लिश हिंदी वर्नाकुलर और इंग्लिश का जो कॉन्फ्लिक्ट था। तो वो दो उसमें स्प्रेड है, मतलब एक यूनिट में स्प्रेड है। मैंने उसको कंपाइल करके एक साइड ऑफ A4 शीट में एक नोट्स बनाया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ, मतलब ऐसे करके मैंने उसमें जो की टॉपिक्स थे ना, या जैसे बहुत सारे जो हमारे उस टाइम पे जो वॉइस रॉयज या गवर्नर जनरल्स या गवर्नर्स रहे थे, उन लोगों ने क्या क्या काम किया, कुछ मेजर स्टेप्स, तो 15-20 का जो बार बार पूछा जाता है उसको मैंने कंपाइल करके 2 पेज पे बना लिया। या किस एक्ट के तहत क्या इम्पोर्टेंट कदम लिए गए, या क्या इम्पोर्टेंट कदम उठाए गए, वो वहाँ पे कि 1835 एक्ट से क्या हुआ, 1853 एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, 1853 एक्ट से क्या हुआ, 1858 एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से क्या हुआ, या बाकी के आगे के जो जितने भी एक्ट हैं 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आगे 1947 तक का, उन सारों के बारे में आप छोटा छोटा 5-5, 6-6 पॉइंट जॉट डाउन कर लीजिए कि इसने बोला एबॉलिश स्लेवरी, इसने बोला कि एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्चा करेगी, इसने बोला ये, इसने बोला कि भैया एक हाई कोर्ट लेके आना है, इसने ये बोला, वो एक बार जॉट डाउन कर लेंगे। वो आपको पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत में भी फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगा, हाउ इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द पॉलिटी केम इनटू, या हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, व्हाट वर द एक्ट्स दैट वर ब्रॉट इन। ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से होगा, बट कंटेंट लगभग सिमिलर है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, दिस क्लास 11 का ये बुक है, RS शर्मा जी ऑथर हैं। दिस अगेन इज अ सफिशिएंट रीड, आप इसको पढ़ लीजिए। मिडिवल का ज़्यादा वेटेज नहीं है, आई हैव नेवर स्टडीड मिडिवल, बट दोज हु यू वांट टू प्रिपेयर दिस मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडिवल इंडिया का एक टेक्स्ट बुक है सतीश चंद्रा जी का, यू कैन फॉल बैक अपॉन। इसमें भी देखिए मिडिवल में ना तो प्री में ना मेंस में ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यू कैन इधर स्किप और यू कैन रीड लिमिटेड। किस सेक्शंस में से पढ़ेंगे लिमिटेड, आपको इसमें आर्ट एंड कल्चर वाले जो चैप्टर्स है ना, मुगल आर्किटेक्चर या जो बाकी के सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर था, या जो सदर्न किंगडम्स के जो आर्किटेक्चर थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, किस तरह का आर्किटेक्चर था, किसने क्या फीचर्स लेके आए, वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप लोग तैयारी कर भी रहे हैं, प्लीज एक बार पढ़ के एक छोटे से नोट्स बना लीजिए 10-15 पेजेस के, दैट्स इट। उस बुक को आपको बार बार नहीं पढ़ना क्योंकि वेटेज नहीं होता। आर्ट एंड कल्चर, आई रिलाइड ऑन दिस बुक, दिस इज अ फाइन आर्ट्स बुक, क्लास 11th का है, ये अच्छा बुक है। इसमें मोर और लेस आपको पूरा डिजाइन्स के बारे में, आपको टाइप ऑफ टेम्पल्स, या टेम्पल्स के या मॉस्क कितने टाइप के होते थे, या किस टाइप का आर्किटेक्चर होता था, किस टाइप में क्या किस पीरियड में एवोल्यूशन हुआ, वो सब इस बुक में मिल जाएगा। इंडस वैली के ऊपर आपको एक चैप्टर है, क्या क्या वहाँ पे कलाएं थी, कॉइन्स कैसे थे, बिल्डिंग्स कैसे थी, ड्रेनेज कैसा था, वो सब कुछ मिल जाएगा इसमें। दैट इज़ अ डिसेंट बुक। अगर फिर भी आपको लगता है, आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू दिस बुक बाय नितिन सिंघानिया। अगेन दिस इज अ वेरी बिग बुक, यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस बुक कवर बाय कवर। आप इसका PDF वर्जन अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसको रेफर कीजिए और वहाँ से जॉट डाउन कर लीजिए। जॉट डाउन इन द सेंस कि गो थ्रू 5 or 6 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, टेम्पल आर्किटेक्चर दिस दैट, आप उसको पढ़िए और उसमें से जो आपको अपनी किताब में से नहीं मिला उसको अपने नोट्स बना लीजिए। अगेन 5 to 10 पेजेस आप बना लीजिए, सप्लीमेंट विद दिस थिंग, दैट इज सफिशिएंट। ओके, कमिंग टू ज्योग्राफी, अगेन फॉर फाउंडेशन 6 to 12 NCERTs is must. Then for physical and human geography, GC Leong, this is a very condensed book, एक पतली सी किताब है, लेकिन इसमें बिलीव में इसमें
every word of it is important. Like Lakshmikant में if you read it for the 8th time or the 10th time, what you will feel is, you will feel कि boss, every time I'm getting some new facts, I'm learning something new. Same will happen here. This is again a very dense book. 4-5 बार पढ़िए, उसमें सारे आपको फिजिकल एस्पेक्ट्स और ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे. Atlas you should own. You should have a proper atlas. Map is very important to have that geographical mindset and the geographical thing in your answers. ठीक है. Economy, coming to economy, NCERTs क्लास 11th एंड 12th, इसमें एक 11th या 12th में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक NCERT है. एंड मैक्रो वाले में बहुत सारे फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस या टाइप्स ऑफ थ्योरीज है, वो सब आप अवॉइड कर दीजिए. कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना, आप बस कंसेप्चुअल जो उसमें है उसको टेकअप कीजिए कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है, डिफरेंट मेथोडोलॉजी से कैसे निकाला जाता है, या उसका कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, उसका बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नथिंग मोर देन. कभी फॉर्मूला आपको नहीं पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में. कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट बढ़ाया तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, क्यों बढ़ाया, इससे एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा, ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा, या इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा. ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, बेसिक स्टफ यू शुड नो, कंसेप्चुअली यू शुड नो. Other than that, there are 2-3 books that you can refer. One is by Sanjeev Verma sir, Indian Economy. Okay, so this is the one. This is the latest edition, Indian Economy by Sanjeev Verma sir. This is a good read. आपका conceptual strong हो जाएगा इससे. अच्छा है, आप देख सकते हैं. I refer to this book. He was my teacher as well. He had taught me. Other than that, there is one book by Ramesh Singh sir, Indian Economy by Ramesh Singh sir. It is also again a very popular book. बट ये बहुत एग्जॉस्टिव है. इतना मोटा किताब है, बहुत सारे जागरन्स और बहुत सारे वो हैं. अगर आपने ये और ये अच्छे से कर रखा है तो आई डोंट थिंक यू नीड इट. इवन इफ यू आर हैविंग इट, अगेन मेक नोट्स, डोंट हैव दैट बुक इन एंटायरिटी. ठीक है. फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इसमें आपको बुक टू कवर नहीं पढ़ना है, मतलब फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक नहीं पढ़ना है, बट एटलीस्ट हैव दैट जिस्ट. इसका जिस्ट बहुत मार्केट में बहुत सारे मीडियम से आपको मिलेगा. जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आएगा 15 से 20 दिन बाद ये इकोनॉमिक सर्वे का एक जिस्ट आएगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों का. उन जिस्ट को उठाइए, उससे अपना छोटा सा नोट्स बना लीजिए. देखिए, आपको इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आने का प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स में नहीं रहेगा, बट मेंस में if you quote economic survey ki, for example, as per economic survey 2016-2017, back in my time when I gave my first attempt, there was a concept called missing women. Missing women, that was related to how many premature deaths of ladies or girls are happening, female feticide, due to which there is approximately some 23 million missing girls in India. 63 million if I am not able to recollect it. So similarly you can quote economic survey if you have short 10-12 पेजेस के नोट्स. बजट, एक बार वो बजट जब आएगा तो या तो वो बजट का जिस दिन प्रेजेंट हो रहा है बजट 1-2 घंटे में वो देख लीजिए, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसको पेश करते हैं, या उसका एक छोटा सा वन पेज या 1-2 दिन अखबार में पढ़ेंगे तो आपको की चीज़ें पता लग जाएंगी, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव बीन मेड, या कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो वो लेंगे अपनी स्पीच में लाएंगे, उन सब के बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट. प्लीज डू नॉट लीव इट. ये बहुत मेजर चंक हो गया. 15 to 20% इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. दिस इज वन ट्रस्टेड बुक बाय शंकर आईएएस. अर्लियर इज यूज्ड टू बी इन ग्रीन कलर, अभी ये ब्लैक कवर का कुछ है 11th एडिशन में. शंकर आईएएस हैज अ वेरी वेल कवर्ड एग्जॉस्टिव बुक ऑन एनवायरनमेंट. इसके अलावा आप एक बायोलॉजी का एनसीईआरटी है क्लास 12th का, ये पूरा नहीं पढ़ना है. इसमें आपको रिमेंबर, ये बहुत मोटा किताब है, इसमें आपको बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाले चैप्टर्स को लेके पढ़ लेना है. 4 या 5 चैप्टर्स हैं. ठीक है. उसका नोट्स बना के अपनी बुक के साथ लगा लेना है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटीज आपको पता होना चाहिए. बेसिक मोस्ट ऑफ अस हैव स्टडीड, बट एक बार ब्रश अप कर लीजिए, नहीं तो इसका जिस्ट भी मिलता है मार्केट में, वो आप उसको उठा के देख लीजिए. करंट अफेयर्स, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी लोग में से पूछते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूज़पेपर. फर्स्ट, आप
नो मैटर आप किस कोचिंग का नोट्स उठा के पढ़ रहे हैं या वो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हैं, आप किसी भी लीडिंग इंस्टीट्यूट का, विदाउट टेकिंग नेम्स, आपके 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, किसी एक का, ज्यादा नहीं भागना है, आप किसी एक इंस्टीट्यूट का, फॉर एग्जांपल विजन आईएएस का क्या मंथली मैगजीन आता है, या वाजीराम का आता है, या फोरम का आता है, किसी का भी एक मैगजीन उठा लीजिए, वो लोग कंपाइल करके आपको दे देंगे। और बिलीव में, जब मान लीजिए किसी एक इंस्टीट्यूट ए में अच्छा आपको लग रहा है कि यार बी वाले ने तो ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो बी वाला उसको नेक्स्ट मंथ में इंक्लूड कर देगा, डोंट वरी। ओवरऑल जब आप 10-12 महीने का जो करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, अच्छा कितने महीने का देखना है, आइडियली प्रीलिम्स के लिए जब आप जा रहे हैं तो प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक, जब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब तक का इंपॉर्टेंट है। मेंस देने जा रहे हैं तो मेंस में भी सिमिलरली, मेंस से 1 महीने पहले तक 12 महीने का एटलीस्ट, मेंस में 12 से 14 महीने, प्रीलिम्स से 9 से 10 महीने, 11 महीने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर लीजिए और साथ में एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन लीजिए। कंपाइलेशंस जो आते हैं कि न्यूज़पेपर हम एक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल एक्सप्रेस में या इंडियन एक्सप्रेस में आई हो, या हम हिंदू पढ़ रहे हैं तो मे बी मिंट में आई हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स और कंसेप्ट आते हैं, तो वो ये सारे लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा पीआईबी रिलीजेस आती हैं, अगेन इफ यू कैन, अगेन इट विल बी एग्जॉस्टिव, आप छोड़ भी सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन। ये कुछ बहुत लोग पूछते हैं कि सर योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ें क्या। देखिए, योजना और कुरुक्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ, मैं हर महीने लेता था, लेकिन अगर आपने लेके उसको रख लिया कि एक दिन पढ़ेंगे, नहीं, आप जिस दिन आपका मन है उस दिन खरीदिए। और जैसे मान लीजिए एजुकेशन पे योजना आई है, या फॉर एग्जांपल सैनिटेशन पे आई है, उसमें 7-8 आर्टिकल होंगे अच्छे अच्छे, एक उसका प्रीफेस होगा, एक ऑथर्स पेज होगा सबसे पहले जो मेन कवर के पीछे होता है, वो उसको पढ़िए आप। उसमें बहुत प्यारे से आपको कुछ एस्से के लिए आइडिया मिलेंगे, कुछ आपको बहुत अच्छे कोटेशंस या आर्टिकुलेशंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छी सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिनको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप 2-3-4 आर्टिकल पढ़िए, और मेरा कहने का मतलब ये है कि योजना लो, उससे 1 या 2 पेज को आपको जो अच्छा सेंटेंस लग रहा है, कुछ 2-4 फैक्ट लग रहा है, अच्छे से लिख लो 2 पेजेस में। उसके बाद वो योजना अपने किसी दोस्त को दे दो या घर कहीं डाल दो, उसको उठाना नहीं है, आप उठाओगे नहीं पढ़ पाओगे। आप 1 या 2 पेज के नोट्स रखोगे, आपके 5-7 योजना पढ़ी या 8 योजना पढ़ी या कुरुक्षेत्र पढ़ी, तो आपके पास एक बढ़िया से आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, PYQs are the heart and soul of UPSC examination. This is the most important thing. इसकी बुक्स भी मिलती हैं, मतलब PYQs कंपाइल्ड भी मिलते हैं, rather you can download from the site of UPSC as well. PYQs are a very important thing, please do not ignore it. अब मैंने एक वीडियो बनाया कि what is the first and foremost step of UPSC preparation. This is the first step. अंडरस्टैंड, लर्न द सिलेबस। जिस चीज को सिलेबस नहीं याद है, सिलेबस को बाय हार्ट कीजिए, 2 दिन दीजिए। मैं बताता हूँ उसको सिलेबस और PYQ से क्या होता है। सिलेबस से आपको पता है कि क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी सिलेबस में डू यू नो हाउ मेनी एक्ट्स आर मेंशन्ड? प्रॉब्ली नॉट, आधे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कौन से एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर मेंशन्ड। नॉट मेनी ऑफ यू नो. You know, there is only one act that has been explicitly mentioned in polity, that is Representation of People Act 1951, 1950-1951. That is the only explicit act that has been mentioned. और हर तीसरे साल, दूसरे साल, चौथे साल, तीसरे साल तो मान ही लीजिए यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आरपीए 1951 के रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, यार आरपीए 1950 में क्या प्रोविजंस हैं, राइट। अब आपको जो पता होगा सिलेबस क्या, आपको पीवाईक्यूज पता होंगे, तो आपने आर्टिकल कोई पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा बॉस ये यहाँ पे इस तरह से ये पूछा जा सकता है। या आपने कोई पीवाईक्यू देखा तो आपको आर्टिकल देख के समझ में आ जाएगा कि दिस इज हाउ दिस आर्टिकल कैन फीचर इन द एग्जाम, ये एग्जाम में मेरे को इस तरह से पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 आध महीना जिसको भी हो गया, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड, इवन देन आपको भी सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करेंगे जब आपका 70-80% सिलेबस हो जाएगा, तब सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 2027 को टारगेट कर रहे हैं, 28 को टारगेट कर रहे हैं, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पीवाईक्यूज और सिलेबस आपको पता होना चाहिए।
एटलीस्ट गो थ्रू इट ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 साल का देख लीजिए, एक बार आइडिया ले लीजिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं व्हाट इज दैट एग्जाम ऑल अबाउट. ओके, आई थिंक that is all from my end as far as this session is considered. जो बुक लिस्ट थी मेरी. अब इसके अलावा वी विल हैव अनदर सेशन दैट इज ऑन ईयर लॉन्ग सेशन ऑफ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास 10 से 12 महीने का समय है, जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा प्लानिंग किस तरह से की जाए, अपने टाइम को किस तरह से बांटा जाए, कब प्री कब मेंस किस समय क्या करा जाए, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को उसमें मदद मिल सके. विद दिस आई लाइक टू थैंक यू एवरी वन ऑफ यू. This again, this is a disclaimer, guys. This book list is not exhaustive. This book list is what I prepared. आपके लिए डिफरेंट हो सकता है ये, बट एक चीज कॉमन याद रखना है हम सभी को कि बुक्स लिमिटेड होना चाहिए. बुक्स शुड नॉट बी कि आपने इतना सारा मटेरियल आपने रेफर कर लिया है कि आप मे बी इतना सारा मटेरियल आपने तैयार कर लिया है कि आप इतनी सारी बुक्स आपने रख ली कि आप रिवाइज ना कर पा रहे हो. ठीक है, तो विद दिस आई विल एंड माय सेशन. ठीक है, डोंट गिव अप. द बेस्ट बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. तो विद दिस आई लाइक टू एंड. कीप वर्किंग हार्ड, कीप ट्राइंग, मिनिमाइज योर सोर्सेज, हैव अ लिमिटेड सोर्सेज, फोकस ऑन रिविजन. जितनी बार रिवाइज करोगे, बिलीव मी, द जर्नी विल बी इजियर फॉर यू. यू विल अंडरस्टैंड कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ा है उसको कई बार पढ़ना है. यही यूपीएससी का मंत्र है. जिसने ये समझ लिया वो निकाल लेगा. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच.